एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। तो अगर टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं है तो आप पिछले लेक्चर में यू कैन गो एंड रिवाइज द टॉपिक। सो लेट अस कंटिन्यू। Electrocardiogram, in short we call it as ECG. It is the record of the electrical activity of the heart taken on ECG paper by electrocardiograph, है ना। तो जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ECG, and this ECG is taken with the help of a machine which is called electrocardiogram. Now, the heart consists of special tissues which are capable of generating automatic and autorhythmic impulses. These are known as the junctional tissues of the heart or the conducting system of the heart. है ना। तो कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं? SA node which is present in the right atrium. It generates the impulse at a rate of 60 to 100 beats per minute. ठीक है। तो यहां से impulses SA node से AV node में आती हैं, which is the next structure, and when the impulses reach the AV node, they causes the contraction of the atrium. Further, the impulses reaches to bundle of his, then the right and left bundle branch, and when they reach the apex of the heart, they divide into numerous small branches which are called the Purkinje fibers. ठीक है। और जब ये Purkinje fibers में impulses फैल जाती हैं, so it causes the contraction of the ventricles. ठीक है। तो इसी का जो स्टडी है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम बोलते हैं ECG, है ना। तो हम सबको मालूम है ECG एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है which denotes the condition of the heart. So now let us find out about the clinical significance of ECG, है ना। So with the help of ECG, we can detect the heart rate, that is the rate at which the heart beats per minute, है ना। तो usually ये होता है 72 beats per minute, but when we talk about the range, तो ये आ जाता है 60 to 100 beats per minute, है ना। तो अगर 60 से heart rate कम होगा, that condition is called bradycardia, और अगर 100 से ज़्यादा होगा, that condition is called tachycardia, ठीक है। Then we can study about the rhythm of the heart, है ना। Now the rate is a different thing. Rate is the speed and rhythm is the regularity, है ना। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है ये रेगुलर इंटरवल्स पर बीट करती है। But in some clinical conditions, in some pathological conditions, ये जो rhythm है, this rhythm is disturbed और इसको हम बोलते हैं arrhythmias और cardiac arrhythmias. So with the help of ECG, we can also detect the cardiac arrhythmias. Now the third is the conduction defect. Conduction defect का मतलब है it is the block in the conducting system of the हार्ट, है ना। तो अगर ऐसे नोड से लेकर Purkinje फाइबर्स तक कहीं पे भी कोई ब्लॉक होता है जिसको कि हम वेरियस डिग्रीज ऑफ हार्ट ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ते हैं, दैट इज द SA नोडल ब्लॉक, AV नोडल ब्लॉक, देन AV नोडल के अंदर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक, फेसिकुलर ब्लॉक। तो एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉक इट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ECG. Then fourth is the myocardial ischemia, है ना। What do you mean by myocardial ischemia? It is the poor blood flow to the heart. तो अगर किसी वजह से हार्ट का ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं myocardial ischemia, which can again be detected with the help of ECG. फिर है नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि अगर इस्चेमिया बहुत ज़्यादा लेवल का बढ़ जाएगा, अगर ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरीज का बहुत कम हो जाएगा, तो जो हार्ट के जो मसल्स हैं वहाँ की नेक्रोसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है, विच कन्वर्ट्स इनटू इन्फाक्शन, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ECG. देन हार्ट अटैक. हार्ट अटैक इट इज़ बेसिकली अ कंप्लीट 100% ब्लॉक इन द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन. देन एनलार्जमेंट ऑफ चेम्बर्स ऑफ हार्ट, जिसको कि हम हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ECG. देन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि एक प्रॉपर लेवल में पाए जाते हैं, अगर वो किसी वजह से डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनका लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, अगेन दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ECG. इसमें आयंस आते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. एंड लास्टली द ड्रग टॉक्सिसिटी, दैट इज द डाइजॉक्सिन एंड ड्रग्स, है ना। तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि ECG में चेंजेस लाती हैं. So now let us discuss about the certain basic terms which are used in electrocardiogram.
सो फर्स्ट इज द बेसलाइन. बेसलाइन का मतलब होता है इट इज अ स्ट्रेट, फ्लैट एंड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, है ना. तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का. ये वाली लाइन जो कि बिल्कुल फ्लैट है, इसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है. देन वेव फॉर्म्स, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव और अपवर्ड और डाउनवर्ड डेविएशन फ्रॉम बेसलाइन. कहने का मतलब है इस बेसलाइन के ऊपर या नीचे जो डेविएशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेव फॉर्म्स और वेव्स. एंड यू कैन सी इन द डायग्राम दीज आर 5, दैट इज P, Q, R, S and T, है ना. P वेव, Q wave, R wave, S wave and T wave. So there are 5 waves. इसमें से जो PRT है ना, क्योंकि ये अपवर्ड डेविएशन है तो इनको हम बोलते हैं these are the positive waves. And Q and S are below the isoelectric line, that is they are the negative deviations, तो इनको हम बोलते हैं negative waves. ठीक है. Sometimes rarely there is another wave which is called U wave, वो भी देखी जाती है कई बार. Then next is the complex. Combination of several wave forms form the complex. So here is a complex, that is a QRS complex, है ना. So combination of few waves constitute the complex. तो यहाँ पर QRS मिलकर बनाती हैं QRS complex को. Then segment, it is a line between two waves, है ना. तो यहाँ पर 2 सेगमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, PR segment and ST segment. So here you can see it is a line between two waves. Here is a P wave and here is a Q wave. In between there is a line which is called the PR segment. Similarly, here is a S wave and here is a T wave, and in between these two waves there is a line which constitute the ST segment. Now the last is the interval, that is the time duration that includes one segment plus one or more waves, है ना. तो यहाँ पर कुछ intervals भी हमको देखने को मिल रहे हैं. One is the PR interval which is very common, then QRS interval, then QT interval, then ST interval, and there is one more interval. For example, this is another wave, another QRS complex. So the interval between the two R waves, it constitute the RR interval. So let us discuss about the waves in detail. In a normal electrocardiogram, there are 5 waves, that is P, Q, R, S and T. In the diagram you can also see the same thing, P, Q, R, S and T, है ना. अब यहाँ पर हमको एक बेस लाइन दिख रही है जिसको कि हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं. इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर जो वेव्स होती हैं उनको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या फिर पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे कौन कौन सी वेव्स दिख रही हैं, P, R and T. So PRT are the upward deflection or positive waves, okay? और इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के जो नीचे हैं उनको हम बोलते हैं डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और नेगेटिव वेव्स. तो ये कौन सी वेव्स हो गई, Q and S. Then the P wave originate and is responsible for causing the atrial depolarization. जो atrium का contraction होता है, it is basically due to the origin of the P wave. Then जो ये QRS complex है, it is responsible for causing the ventricular depolarization or ventricular contraction, and the T wave is responsible for the ventricular repolarization और ventricular relaxation. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो P wave का origin atrium से है, लेकिन जो QRS complex and T wave का origin ventricle से है. So the P wave is also called the atrial complex because it originates from the atrium, and the QRS complex and T wave is called the ventricular complex because they originate from the ventricles. ठीक है. So let us study about the P wave. P wave, it is the first positive upward deflection, है ना. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारी पहली वेव है and it is a positive wave. Then it has a small constant and rounded shape, as you can see in the diagram. It has a rounded top. Then the duration is 0.1 seconds and the amplitude is 0.25 millivolts, है ना. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, this is the ECG grid. इसके अंदर जो x एक्सिस है ये 0.04 सेकेंड का 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और जो 5 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 सेकेंड्स को.
एंड सिमिलरली ऑन वाई एक्सेस 1 मिलीमीटर स्क्वायर कवर्स 0.1 मिलीवोल्ट, तो जो 5 स्क्वायर्स हैं ये 5 मिलीवोल्ट 0.5 मिलीवोल्ट को कवर करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ड्यूरेशन में तो 2.5 स्क्वायर्स यहाँ आएंगे ऑन एक्स एक्सेस एंड 2.5 स्क्वायर्स दे विल कम ऑन वाई एक्सेस बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज 0.25 मिलीवोल्ट। ठीक है, देन द कॉज इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, है ना। हियर वी आर सीइंग द कॉज ऑफ द पी वेव इज the atrial depolarization, that is the atrial systole. Then let us study about the clinical significance. A normal P wave, it represents sinus rhythm, है ना। अगर P wave बिल्कुल नॉर्मल है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही है, इसका मतलब है जो इम्पल्स है बिल्कुल नॉर्मल है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इम्पल्स? नॉर्मल इम्पल्स का मतलब है इम्पल्स इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऐसे नोट। ठीक है, तो हम इसको साइनस रिदम भी बोलते हैं। If P wave is absent or inverted, so here you can see if the P wave is not a upward deflection but a downward deflection or absent, that means the impulse is not originating from SA node, it is originating from some other structure apart from SA node, है ना। तो हो सकता है कि इम्पल्स AV नोड से ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम नोडल रिदम बोलेंगे। हो सकता है हमारे वेंट्रिकल्स इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं जिसको कि हम ईडियोवेंट्रिकुलर रिदम बोलेंगे। ठीक है, देन इफ P wave is large and notched, सो हेयर यू कैन सी अगर पी वेव का जो साइज है, जो एम्पलीट्यूड है, ये बड़ा होता है और ये पी वेव अगर हमारी नॉच्ड होती है, इट इंडिकेट द राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी, है ना। राइट एट्रियम के एनलार्जमेंट को शो करता है। ठीक, इफ पी वेव इज ब्रॉड एंड एम शेप्ड, है ना, तो अगर पी वेव हमारी ब्रॉड होती है एंड यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज एम शेपेड, दैट मीन्स इट इंडिकेट द लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। Then if P wave is replaced by fibrillary waves, जिनको कि हम F waves भी बोलते हैं, एक P wave नहीं हो के हमारे पास में बहुत सारी ऐसे fibrillary waves अगर पाई जाती हैं तो वो इंडिकेट करती है atrial flutter and atrial fibrillation which are the cardiac arrhythmias, है ना। तो इसमें जो एट्रियम का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, the heart rate of the atrium increases to a very large number. Then the next is the QRS complex which constitute QRNS wave, है ना। तो ये जो QRS complex है, it indicate the conduction of impulse from AV node to the Purkinje fibers which ultimately causes the contraction of the ventricles, है ना। तो impulses जब AV node से finally bundle of his right and left bundle branch और Purkinje fibers पर जाती हैं, तब जाकर ventricles contract करते हैं which is marked by ventricular depolarization। ठीक, then the duration of the QRS complex is 0.08 to 0.1 second. Then this QRS कॉम्प्लेक्स ये 3 वेव्स का बना होता है, QRNS वेव, है ना। तो Q वेव आप देख रहे हैं, here is the Q wave and you can see in the diagram it is a very small and inconspicuous wave, है ना। inconspicuous का मतलब है आसानी से ये दिखती नहीं है, बहुत छोटी सी वेव होती है। इसका एम्पलीट्यूड होता है 0.1 से लेके 0.2 मिलीवोल्ट्स। देन The clinical significance is when it is deep and prominent, है ना। आमतौर पर ये वेव बहुत अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे, बहुत ज़्यादा कॉन्सिपिक्यूस हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इट इज सीन इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, है ना। सो अ डीप एंड प्रोमिनेंट क्यू वेव इज इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन द नेक्स्ट वेव इज द आर वेव, और आप ये देख रहे हैं इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ कॉन्सिपिक्यूस वेव। ठीक है, इट इज द टॉलेस्ट वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द एम्पलीट्यूड इज 1 millivolt and a tall R wave indicate ventricular hypertrophy. This R wave is already very tall, लेकिन अगर ये नॉर्मल से और ज़्यादा टॉल होती है तो वो इंडिकेट करता है हमारी ventricular hypertrophy को, that is the enlargement of the ventricles. Then the S wave, it is a negative wave, है ना, it is a negative wave and the amplitude is about 0.4 millivolts. And finally, if the QRS कॉम्प्लेक्स इज प्रोलॉन्ग्ड, है ना, अगर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, 0.08 से लेके 0.10 सेकेंड से ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इट कॉजेज बंडल ब्रांच ब्लॉक और हाइपरकैलेमिया। बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब है इम्पल्सेस का राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच पे कंडक्शन में डिफेक्ट होना, एंड हाइपरकैलेमिया मीन्स द इंक्रीज ऑफ पोटेशियम लेवल इन द ब्लड।
Now let us study about the T wave. The T wave, it is a positive wave of ventricular complex, है ना. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये एक पॉजिटिव वेव है. इसका अगर हम शेप देखेंगे तो राउंडेड है और ब्रॉड है ना. तो P वेव के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड है और शेप इसका राउंडेड ही है. Then the duration is 0.27 seconds. The amplitude is 0.1 millivolt. And the cause is ventricular repolarization. तो जब ventricles relax करने लगते हैं, that is marked by the T wave. Then the clinical significance is if this wave is inverted, है ना. तो अगर ये वेव ऊपर की तरफ नहीं होकर inverted हो, ठीक है, as you can see in the diagram, it is indicative of myocardial infarction, ventricular hypertrophy, that is the enlargement of the ventricles, and the electrolyte disbalance or imbalance. Sometimes you see a U wave after the T wave, है ना. तो U wave कभी कभी T wave को follow करती है, as it is seen in the diagram pqrst, and it is followed by a U wave, and it is basically due to slow repolarization of ventricles. Now let us study about the PR interval. PR interval, it is the interval between the onset of P wave and the onset of QRS complex, है ना. तो P wave के शुरुआत से लेके QRS wave complex के शुरुआत का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं PR interval, है ना. और Q और R में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, इसलिए हम इसको PQ interval भी बोलते हैं, ठीक है. Then the duration is 0.12 to 0.20 seconds. Then it indicates the conduction time of impulse from SA node to बंडल ऑफ हिज, है ना. तो ये ऐसे नोड से बंडल ऑफ हिज का जो कंडक्शन टाइम है उसको रिप्रेजेंट करता है. और अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, इफ द पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड, दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिव ऑफ एवी हार्ट ब्लॉक, यानी कि देर इज सम प्रॉब्लम इन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड द इम्पल्स इज जनरेटेड नॉर्मली, यानी कि ऐसे नोड नॉर्मली इम्पल्स जनरेट कर रहा है, बट देर इज सम डिफेक्ट इन AV node, that is the conduction through the ventricles is faulty. So the clinical significance is that if the PR interval is prolonged, it is indicative of atrioventricular heart block, है ना. कहने का मतलब है impulse ऐसे नोड से तो normally generate हो रही है, लेकिन AV node के through conduction में there is some problem, and so the transmission of impulse through the ventricles is faulty. So the next is the RR interval. It is the time interval between two successive R waves, है ना. तो जो दो R waves के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं RR interval, and it is about 0.8 seconds. ठीक है. अब ये क्या इंडिकेट करता है? द RR interval is same in successive stages. It indicate the rhythmic depolarization of ventricles, है ना. यानी कि दो R interval के बीच में अगर हम R interval के बीच का अगर हम गैप काउंट करते हैं और अगर वो हमको सेम मिलता है, इसका मतलब है कि जो हमारे ventricles का जो depolarization है, that is absolutely rhythmic. Then the QT interval, it is the interval between the onset of Q wave. Here you can see it is the interval between the onset of Q wave to the end of T wave, है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं? QT interval. And if this interval is prolonged, it is indicative of myocardial infarction and hypocalcemia. हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का ब्लड में कम होना, एंड इफ दिस इज शॉर्टन, इट इज इंडिकेटिव ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, दैट इज इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड. नाउ ST segment, it is the segment which extends between the end of S wave and the beginning of T wave, है ना. तो S wave के end से लेके T wave के beginning की जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं ST segment. It is normally present on isoelectric line, है ना. तो आप देख रहे हैं दिस इज द बेस लाइन, और इस बेस लाइन के ऊपर ही इस ST सेगमेंट को लोकेट किया जाता है. Then the clinical significance is if this ST segment is elevated, it is indicative of acute myocardial infarction, है ना. So for example, this is a normal ECG, लेकिन अगर ये ST segment ठीक है इस बेस लाइन के ऊपर आता है, इट इज एलिवेटेड,
है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंड इफ दिस एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड इट इज इंडिकेटिव ऑफ क्रॉनिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर ये एसटी सेगमेंट अगेन ठीक है, तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के नीचे चला गया, डिप्रेस हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कैन कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम ईसीजी, है ना। तो अब हार्ट रेट यहाँ पे दो होती हैं, एक है एट्रियल हार्ट रेट दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट in 1 minute, and another is the ventricular heart rate, that is the number of times ventricles are contracting in 1 minute, है ना। तो हमको ये मालूम है जो P वेव है ये एट्रियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना। सो 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कवर्ड बिटवीन 2 पी वेव, अगर हम 2 पी वेव के बीच के स्मॉल स्क्वायर्स को कवर करते हैं और अगर हम उसको 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कवर्ड बिटवीन 2 पी वेव्स करके कैलकुलेट करते हैं, सो वी गेट द एट्रियल हार्ट रेट, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने ये 1500 जो फिगर है ये कहाँ से आया, ठीक है। तो हमको मालूम है जो ईसीजी है इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ये 25 मिलीमीटर्स कवर करती है, ठीक है, स्क्वायर्स को। तो 1 मिनट के अंदर ये कितना कवर करेगी, 25 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, दैट कम्स टू 1500 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। उसी तरीके से हम वेंट्रिकुलर हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कवर्ड बिटवीन 2 आर वेव्स, है ना। तो यहाँ पे हमने पी वेव लिया है और यहाँ पे हमने आर वेव लिया है ना। तो हमको पी वेव के समिट से, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ पी वेव टू द टॉप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पी वेव को, यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, दैट विल बी द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कवर्ड बिटवीन 2 पी वेव्स। और हम वेंट्रिकुलर हार्ट रेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, द टॉप ऑफ आर वेव टू द टॉप ऑफ अनदर आर वेव, है ना। तो ये वाला यहां पे लेंगे वेंट्रिकुलर में और दिस पोर्शन वी विल टेक फॉर एट्रियल हार्ट रेट। सो आई होप you liked the video. If you liked the video, please like it and subscribe the channel.